Hello student, in this lecture we continue the timing diagram, and in previous lecture 10, we discussed about the two timing diagrams and the two status signals conditions, and you understand what there is in two status signal is S1 and S0, and there is in four different combinations are happened, and the four different combinations and each combinations has an outputs. Suppose if S1 is equal to 1, S0 is equal to 1, this we say that opcode fetch instructions are happened when 0 1 that is write operation, 1 0 read operation, and 0 0 we say that there is an halt is no operations are working. So today we continue to the timing diagram of the rest instructions, and finally your timing diagrams we understand. I think two timing diagrams we understand how to draw your timing diagram. And the basic thing we understand about the timing diagram, first we draw the address of the given memory in your 8085 microprocessor. First you put the program in the memory, and that will be sent to the 8085 microprocessor. According to the instructions, that process will be working out. Now this is your lecture 10. I continue. We discuss this is the timing diagram, and this is the status signals. We discuss about the conditions about 0 0 halt instruction, no operation, 0 1 is write operation, 1 0 is your read operations, 1 1 is your opcode fetch, and it is reading instructions, and there is in different machine cycles, and there is in control signals. We already discussed all this thing in the previous lectures. Now this is the timing diagram of move A comma B, and this timing diagrams we already discussed. First this we write the program in your memory, and has a memory is the given address. इसका मतलब ये था कि आप लोग जब आप 8085 माइक्रो प्रोसेसर किट खरीदने या कभी आप नेट पर भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि उस मेमोरी लोकेशंस आपको गिवन होगा. डेट मेमोरी लोकेशंस वी राइट ए प्रोग्राम. आप उस मेमोरी लोकेशंस पर ही प्रोग्राम को राइट अप कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, आप जो भी प्रोग्राम आप उस पर राइट अप करेंगे या जो भी लिखेंगे वो अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शंस वी विल बी गो टू द योर माइक्रो प्रोसेसर 8085. आपका मेमोरी उस माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करेगा. माइक्रो प्रोसेसर को क्या सेंड करता है? ऑपकोड फेच साइकिल, and that will be discussed. In this case we say OFC, this is your opcode fetch cycle, and move A comma B is a 78 is the opcode, and it is sent to the 8085 microprocessor, and microprocessors understand that is the move instruction means data transfer instructions, and that one instruction that is when data will transfer from B to A. Now this is the timing diagrams, and we see in this timing diagram there is an 4 T state. इसका मतलब ये हुआ कि we see in this figure in the opcode phase the total 4 T states are required, means 4 clock pulses are required to execute your opcode. opcode को 4 clock pulse लगते हैं, तो opcode fetch instructions का this is the status signal S equal to 1, S1 is equal to 1 and S0 is equal to 1. We already understand in the first slide, and here we draw this diagram, and we see, and this part is understand about this part is S1 sorry it's my mistake, I forgot. Yes, it's a say that S1 is equal to 1, S0 is equal to 1, and this is the diagram. In this all values are high state, and in this is your memory read operations. We understand क्योंकि memory में आप write up program किए और आप read operation कर रहे हैं, then this is the memory will be enables. You understand? And here there is an important point. This 4T state is your unspecified. It means there is a no operations are happened. In this 4T state we say that there is a decoding part. Decoding means says that if you write a program and that programs will be decoded into the machine language, this will be happen in your that is say that this is the T4. T4 में ये process आपका happened होता है. So this is denoted by dot dot dot. Okay, the next, and the next timing diagram is MVI A comma 45H, and MVI this is your opcode, and its opcode, and its this is your opcode fetch, and this is your opcode is 3, means is
it means this microprocessors understand this 8-bit hexadecimal part, and 45H is your data, and that data will be transferred to your accumulator. It means says that this instruction microprocessor understand this is an immediate instruction mode, and there is an data is also present. Then the microprocessor again go and capture the data and send to the microprocessor 8085. Now this is the timing diagram. इस टाइमिंग डायग्राम में देखिए क्या होता है कि आपके पास ये मेमोरी है. फर्स्ट क्या कर रहा है, मेमोरी आपका ऑपकोड फेज साइकिल हो रहा है. ऑपकोड फेज साइकिल का मतलब ये है कि सबसे पहले मेमोरी आपका इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है. तो आपका इंस्ट्रक्शन क्या है, MVIA, इट मीन्स सेज दैट मूव इमीडिएट एक्यूमुलेटर. तो इसका ऑपकोड फेज कितना है आपका 3E. तो सबसे पहले ये क्या करेगा, 8085 आपका एड्रेस कंटेन करेगा. दिस इज ये आपका एड्रेस कंटेन कर रहा है, और एड्रेस आपका क्या है A00H. इस एड्रेस में क्या है, इस एड्रेस के बाद क्या करेगा माइक्रो मेमोरी इसका 73E विल सेंड टू द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर को 3 सेंड करेगा, एंड द नेक्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर को ये समझ में आ जाएगा कि डेटा इज ऑल्सो प्रेजेंट, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन से माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कि डेटा भी होगा. तो डेटा के लिए क्या करेगा, अगेन मेमोरी सेंड द डेटा. नाउ चलिए अब हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम. टाइमिंग डायग्राम में यू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हम लोग टाइमिंग डायग्राम में क्या करते हैं, फर्स्ट 3 क्लॉक साइकिल आपका क्या स्टोर करता है, एड्रेस. वी स्टोर द हायर एड्रेस, एंड दिस पार्ट इज सम चेंज. आप यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा. आई विल डिस्कस ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास. अनस्पेसिफाइड. ओके, दिस इज 4th क्लॉक साइकिल, एंड द 1 क्लॉक साइकिल इज रिक्वायर्ड फॉर लोअर एड्रेस बस, एंड एट द टाइम योर ALE वैल्यूज हाई. आपका उस टाइम क्या होगा, ALE इज द हाई स्टेट बिकॉज योर एट लोअर एड्रेस इज इनेबल. आप लोअर एड्रेस को इनेबल कर रहे हैं. एट द टाइम योर एड्रेस लैच इनेबल मीन्स आपका एड्रेस लैच इनेबल, जब ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था डायग्राम में, आर्किटेक्चर डायग्राम में, तो आपने देखा था कि एक लैच हम लोग यूज़ करते हैं 2 क्लॉक साइकिल के लिए, क्योंकि आपका हायर एड्रेस 3 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होता है और लोअर एड्रेस 1 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड होता है. तो इसे 2 क्लॉक साइकिल तक स्टोर रखने के लिए, मतलब ये वायलेटेड ना हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लैच का यूज़ करते हैं. लैच विल इनेबल बाय योर ALE. तो एंड द रेस्ट ऑफ द 3 क्लॉक साइकिल यू सी देयर योर ALE विल बी इन द लो स्टेट. And now we see, and in this says that A000, this is your address. At the time there is a no read and write operation. तो रीड ऑपरेशन आपका कब हो रहा है, आपका माइक्रो प्रोसेसर कब रीड करेगा. आप देख रहे हैं कि मेमोरी OFC भेज रहा है, दैट इज ऑपकोड फेच. तो आपका माइक्रो प्रोसेसर ऑपकोड फेच का जो दैट इज योर 3E जब मेमोरी सेंड कर रहा है, एट द टाइम योर माइक्रो प्रोसेसर रीड, आपका उस टाइम क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा, एंड दिस इज योर रीड RD बार. एट द टाइम द माइक्रो प्रोसेसर इज रीड, and then it is in T4, it is in high state. Okay, and there is a no write operations. We see it is so that there is a no write operation, तो it is in high state. तो आपका write operation नहीं हो रहा है, तो हम write को high state पर रखें. Now next अब देखते हैं कि जब ये opcode fetch हो गया, तो अब next क्या होगा, next क्या होगा कि हमारा जो data stored है उस एड्रेस को सबसे पहले रीड कर लिया. तो देखिए आप नेक्स्ट में जब डेटा में आ रहे हैं तो देख रहे होंगे कि ओनली 3 क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड. जब आप ऑपकोड फेच कर रहे थे तो 4 क्लॉक पल्स लग रहा था, क्योंकि ऑपकोड को एक T4 जो क्लॉक पल्स था वहाँ पर डिकोड प्रोसेस हो रहा था. तो जब आप डेटा की बात करें या उसके अलावा कोई बात करें तो देयर इज एन ओनली 3 क्लॉक पल्स आर रिक्वायर्ड. ओके, और आपको पता है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हायर एड्रेस को 3 क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड होता है, और 1 क्लॉक पल्स आप देख रहे हैं, 1 clock pulse are required your lower address, that is your A001, this one. अब ये सॉरी यहाँ पर 43 की जगह पर 45 कर लीजिए, एंड वी सी और क्या होगा, नेक्स्ट 2 क्लॉक साइकिल आपका जो भी डेटा है दैट डेटा विल ट्रांसफर टू द 8085 माइक्रो प्रोसेसर, दैट विल बी ट्रांसफर टू द accumulator. Now we see that again your in the lower address, जब आपका वो लोअर एड्रेस को
एक्टिव होना था, तो उस समय आप देख रहे हैं कि ALE अगेन हाई स्टेट एंड रेस्ट ऑफ द 2 क्लॉक साइकिल आपका ALE 0। आप अगेन एक प्रोसेस देखिए, रीड ऑपरेशन को अगर आप देख रहे हैं तो इस रीड ऑपरेशन में देखिए अगेन आपका रीड क्या कर रहा है, लो स्टेट में कब आ रहा है, जब 45 को रीड करना होगा। और अगेन दिस मेमोरी इज अ लो स्टेट। आप थ्रू आउट देख रहे हैं आपका जो मेमोरी इनेबल हो रहा है क्योंकि मेमोरी से ट्रांसफर हो रहा है। तो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस। नाउ वी टुडे आई डिस्कस द टाइमिंग डायग्राम ऑफ LXI A FO45. This is L is your load, X is your extended, I stand for immediate, A accumulator. It means says that कि this is your X register pair and this register pair has an contain an address. This register pair has an contain an address. यह रजिस्टर पेयर क्या कर रहा है, कंटेन एन एड्रेस, आपका कोई एड्रेस कंटेन कर रहा है और यह एड्रेस में जो डेटा है डेट विल बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर, आपके एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर। आप एक प्रोग्राम लिखे, दिस इज योर प्रोग्रामिंग पार्ट। आपको पता है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, LXI A, इट इज एन 8 बिट और आपने स्टार्ट किया A 0000, ठीक है, H, दिस इज योर हेक्सा। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा, A 001, नेक्स्ट क्या होगा A 002 एंड सो ऑन। आपका ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका मेमोरी अकॉर्डिंग टू द। अब ये क्या स्टोर करेगा, A00, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा सबसे पहले ये LXI A का ऑपकोड लिखेगा एंड ऑपकोड इज 21। नेक्स्ट आपका एड्रेस, जैसे आपने लिखा इसका LXI A लिखा, इसका मतलब आप नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, एड्रेस। एड्रेस आपका कितना बिट का है, 16 बिट का है। तो ये आप देखिए क्या होगा कि ये जो आपका A0, दिस इज योर, ये आपका क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। आप यहाँ पर एड्रेस जो लिख रहे हैं इस एड्रेस में डेटा है, तो सबसे पहले क्या होगा, F0। अब ये क्या होगा कि दिस F0, अब ये जो आपका F0 है डेट विल बी स्टोर्ड इन F0 एंड 45। सबसे पहले क्या आपका लोअर एड्रेस, आपका सबसे पहले क्या होता है, हम सबसे पहले लेते हैं लोअर एड्रेस को, तो दैट लोअर एड्रेस will be stored in your memory is 45। अब आपका 45 इस मेमोरी स्टोर में स्टोर हो गया एंड द नेक्स्ट लोकेशन इज F0। ये कंप्लीट आप जो प्रोग्राम था LXI F045, इट विल बी स्टोर्ड इन योर मेमोरी, आपके ये मेमोरी में स्टोर हो गया। ठीक है, क्योंकि आपने सबसे पहले, और देखिए क्यों यहाँ पर आपको ये लग रहा हो कि F045 अलग अलग क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा को स्टोर करता है, ना कि 16 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो यह एड्रेस क्या करेगा, पार्ट बाय पार्ट करेगा, पहले लोअर एड्रेस को स्टोर करेगा फिर हायर ऑर्डर को एड्रेस को स्टोर करेगा। तो आपका सबसे, क्योंकि आपका टोटल एड्रेस 16 बिट का, तो उसको 8 पार्ट में करेगा। तो फर्स्ट 8 पार्ट इज योर लोअर एड्रेस, इट विल बी स्टोर्ड एंड द नेक्स्ट विल बी स्टोर्ड इन योर। अब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर अब क्या करेगा, एड्रेस, हायर एड्रेस को रीड करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जब हायर एड्रेस को रीड करेगा तो सबसे पहले ये आपका 21 जो आपका ऑपकोड फेच है, दिस इज OFC ऑपकोड फेच साइकिल, इट विल बी रीड एंड सेंड टू द माइक्रो। जब माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा ये 21 ऑपकोड फेच, तो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कि देयर इज एन एड्रेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेक्स्ट 2 मेमोरी लोकेशन। माइक्रो प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन से कि इसके बाद एड्रेस आने वाला है, तो ठीक है, तो उसको, तो इट विल बी अंडरस्टैंड कि अब जो एड्रेस होगा दैट इज प्रेजेंट इन द नेक्स्ट मेमोरी। प्रोग्राम काउंटर आपको बताया गया था, इट विल इंडिकेट योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस, क्या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। Then it will be the 45 is sent and then F0 is sent, you understand, and that will be sent to the microprocessor. Now we start. Now the timing diagrams we see that, and this is your instruction A 000H and we are
already discussed. This is your memory address, LXI AF045 है. First आपका this is your opcode phase, 21 will stored, 45 and F0 is stored. There is an opcode phase cycle I already discussed. आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेमोरी इनेबल मेमोरी रीड ऑपरेशन, और देयर इज एन मेमोरी इनेबल मेमोरी रीड ऑपरेशन. आप रीड कर रहे हैं, आप मेमोरी से रीड करके माइक्रो प्रोसेसर्स को रीड आउट कर ले रहे हैं. नेक्स्ट, नाउ वी सी दिस इज योर टाइमिंग डायग्राम एंड this timing diagram, the first we understand this is your opcode phase cycle. सबसे पहले opcode phase cycle आपका start होगा, and you understand there is in this again there is an we change in the fourth clock cycle. This is your unspecified. Only the 3 clock pulse are your opcode phase, and the fourth is your unspecified. We see same problem, same. We say that this is your A0. This is a higher address will stored. 00 is a lower address will stored at the time your ALE is enable, and 21 is your opcode fetch of your LXI-A that will be stored here, and at the time your we see that there is an ALE will be in the low state. Now again that will be sent to the microprocessor. Understand there is an address are also present, because the total instruction is, I will discuss in the instruction set. We go to the instruction set, we see that LXI-A address, it means the microprocessor understand there is an address are also stored in the memory. So LXI-A that will be again A0 is your higher address will stored, and there is an again AL is in 101, and the lower address is 45 are stored in this A0001, and at the time is AL is low. Okay, we see at the time your read operation is present, क्योंकि आप read कर रहे हैं, 21 को आपने रीड कर लिया. अगेन हाई, आप 45 को फिर रीड करेगा माइक्रो प्रोसेसर, अगेन रीड ऑपरेशन इज लो, आप देख रहे हैं लो स्टेट. अगेन देखिए A00 मेमोरी, अब हम क्या करेंगे, हायर एड्रेस जो आपका हायर एड्रेस F0 विल बी अगेन स्टोर्ड इन द A002, अगेन 02 AL इज हाई and that is F00 is the low state. Again we see this is your read bar is in low state, again read operation is. Then overall this write operation is high state because there is a no write operations are happen. तो अब यहाँ पर कितना स्टेट हो रहा है, 4 + 3 + 3 total 10 T states are present. Now it is see that there is a memory instructions are there. We see there is a memory instructions IO M bar and M memory operations are happened, so there is a low state M bar is IO / M bar is equal to 0, so the memory operations means memory read operations are happened. Now next instructions हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, A000H is move A, M. It means says that this M is your memory, और आपको M का मतलब पता है कि this is HL pair. HL pair register is indicate your memory address. तो HL pair जो memory address contain करेगा, उस address में जो data होगा that will be transferred to the accumulator. Now इस opcode fetch is 7. आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ आपका opcode fetch है 7E. ठीक है, ओके. तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर थोड़ा देखते आइए, यहाँ पर दो प्रोसेस हो रहा है. एक तो आप सिर्फ देख रहे हैं कि मूव A, M, तो आपको लग रहा हो कि देयर इज एन ओनली ऑपकोड्स आर प्रेजेंट. तो आपने क्या किया, ऑपकोड फेच इंस्ट्रक्शन. जब आपने ऑपकोड फेच इंस्ट्रक्शन दिया 7E, माइक्रो प्रोसेसर ने अंडरस्टैंड किया होगा. जब आप 7E माइक्रो प्रोसेसर को डिकोड करेगा अपने कोड में, तो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कि देयर इज एन मेमोरी एड्रेस and that will be store the data and that data will transfer to the accumulator. ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या समझेगा कि आपके पास मेमोरी है, तो आपको पता है वो मेमोरी क्या है, आपका HL पेयर रजिस्टर. तो वो माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा कि देयर इज एन एनी इंस्ट्रक्शंस इन HL पेयर दैट HL पेयर स्टोर द डेटा. अगर आपका HL पेयर रजिस्टर, आप एक प्रोग्राम जब लिखेंगे तो उसमें HL पेयर को ऑलरेडी स्पेसिफाइड करेंगे. बस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में बता रहा हूँ कि वो ऑलरेडी, जैसे मान लें LXI-H आप करते हैं,
एंड दिस एच एल पेयर विल, पहले आप डेटा को स्टोर करते हैं एंड दैट विल बी अगेन। तो उस केस पे क्या होगा कि सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन जब आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कि जहाँ पर एच एल पेयर जो है वो कुछ डेटा कंटेन कर रहा होगा, दैट डेटा विल बी ट्रांसफर टू द accumulator. So next instruction is memory enable memory read operations. ठीक है, we understand? Okay. तो होगा क्या, देखिए मान लीजिए कि we say that कि suppose this we say that LXI-H and LXI-H, this is your HL pair register and that is the, say that the data will be present here. Okay. Now the timing diagrams we understand, and again this is A0000H, ठीक है, and this is your opcode fetch 7E, again your ALE will be enable, RD bar read operation for 7E, there is a no write operation. मैंने just आपको कहा कि there is a next 3 state जो आपका होगा where the content of register H and register L, तो रजिस्टर L और रजिस्टर H कहाँ, किस कंटेंट ऑफ रजिस्टर H और कंटेंट ऑफ रजिस्टर L, मतलब मान लीजिए कि आप लिखे LXI-H 4000, इसका मतलब H विल कंटेन 40 और L विल कंटेन 00H, तो दिस इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर विल स्टोर द डेटा, दैट डेटा विल बी सपोज दिस कंटेंट M। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप उसमें कुछ डेटा स्टोर कर देते हैं तो दैट डेटा विल बी हेयर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप एक एच एल पेयर रजिस्टर को स्पेसिफाई करेंगे, तो जो भी एड्रेस होगा दैट एड्रेस इज देयर इज रिटन, और उस एड्रेस में जो डेटा होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द accumulator. So this is your read bar operation and again this content of M जो होगा there is in read bar operations are enabled. Now we see again read bar operation is the content, there is a no write operation and this is your memory read. So this is opcode phase cycle, there is a memory read cycle, so there is in total 7 T states are in this instruction set. Next this is an another and different, अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे वो ओनली रीड ऑपरेशन देख रहे थे, बट यहाँ पर आप देखिए there is instruction is move M, A. It means says that there is an accumulator has an data content, that data will be stored in your memory. अब आपको मेमोरी में स्टोर करना, इसका मतलब ये हुआ कि there is an write operations are happened and this is your opcode fetch is 77 और आपका opcode fetch क्या है 77. Now this is the timing diagrams, this is your opcode fetch instruction 77. जब आपका माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा देन माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कि जो भी डेटा एक्यूमुलेटर कंटेन कर रहा है, सपोज कोई डेटा, मान लीजिए कि आपने पहला इंस्ट्रक्शन लिख दिया था LDA लोड डायरेक्ट एक्यूमुलेटर और सम डेटा मान लीजिए आपने लिख दिया, ठीक है, या आपने सपोज दिस इज योर MVI A, 27H. It means that your accumulator is contain your 27H, तो that 27H you will store your accumulator. तो यहाँ पर this instruction is already executed. इस इंस्ट्रक्शन का मतलब accumulator 27 जो कंटेन कर रहा है वो मेमोरी में स्टोर करना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके बाद आपने MVI एक कॉमा के बाद लिख दिया सपोज LXI-H 3040. इसका मतलब ये है कि दिस 3040 your HL pair register memory locations are present, that is 3040. इसका मतलब इस 3040 में this is the memory locations of your HL pair और इस HL pair का जो memory location है यहाँ पर आपको स्टोर क्या करना है 27. तो this type of instructions are written. तो अब इस तरह से मतलब आपने HL pair register को भी डिफाइन कर दिया, तो HL pair register that is your memory location, it is stand for M. और your 3040 के भी क्या होगा, it will be store your accumulated data. मतलब MVI A, 27H लिखा हमने, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने लिख दिया LXI-H 3040, उसके बाद हमने लिख दिया move M, A. अब ये move M, A वर्किंग कैसे करेगा देखते हैं.
इन दिस केस अब क्या होगा कि सबसे पहले ऑपकोड होगा इंस्ट्रक्शन, तो सेम ऑपकोड दैट इज एन अगेन ये फोर्थ क्लॉक साइकिल अनस्पेसिफाइड, एंड यहाँ A0000 again AL is high state, there is a low state. 7E, sorry, it says 7E, we'll check it. 7E and 77, there is in confusions. I think 7E is there. We'll check it, not a big deal. We check 7E and 77, what is the opcode of this move M comma A. That's not a big deal. And now we see that there is a read operations are also enable. In this case आप देख रहे हैं read in आपका फिर से enable हो जा रहा है क्योंकि आप opcode को read कर रहे हैं, it is 7E को इसने read कर लिया. And in this case the fourth clock cycle, you know, there is a decoding part. And now we say that there is a content of register. I will see that that is 3040. LXI H is 3040. It is says that that will be stored. 30 is there and that is the 40 is there. This is the address I will already assign is 3040. तो 3040 हमने LXI H को स्टोर कर दिया था, तो 3040 will be this is the memory address of your HL pair and the content of your accumulator register है, मैंने क्या लिखा था 27, तो that will be stored in this 27. अब क्या होगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका राइट ऑपरेशन हो रहा है. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका तो रीड ऑपरेशन हो गया, आपने ऑपकोड को रीड कर लिया, बट आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि एक्यूमुलेटर से मेमोरी में डाल रहे हैं. तो जब मेमोरी में आप पुटअप करेंगे तो देयर इज एन राइट ऑपरेशन. तो इन दिस केस आप इस केस में क्या देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी 3040 LXI H, आप देखिए LXI H 3040, इसका मतलब H विल कंटेन 30, L विल कंटेन 40. तो हमने ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन असाइन कर दिया, तो डेट इज 3040 आर परसेंट, और 27 हमने लिख दिया MVI A, 27H, तो इट विल से दैट इज एक्यूमुलेटर विल कंटेन 27H. तो अब ये 27 को हमने क्या किया, मेमोरी में स्टोर कर दिया. तो आप देखेंगे कि जो राइट बार को देखिए, तो राइट बार जो है जब कंटेंट ऑफ रजिस्टर है, सी दिस पार्ट, आप देखिए इस पार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो दैट इज द राइट ऑपरेशन क्या हो रहा है, आपका इनेबल हो जा रहा है. रीड ऑपरेशन आपका है क्योंकि आप मेमोरी में डेटा को डाल रहे हैं, तो इट इज योर राइट ऑपरेशन. और अगेन आप IOM बार में आप देख रहे हैं देयर इज एन ओनली द मेमोरी ऑपरेशंस आर हैपन. तो इस केस में आपने देखा कि जब आप मेमोरी में डेटा को डालेंगे तो आपका राइट ऑपरेशन इनेबल हो जाएगा. लेकिन आप जब भी ऑपकोड को करेंगे तो ऑपकोड ऑलवेज द रीड ऑपरेशंस, कोई भी राइट ऑपरेशन. तो देयर इज एन वन क्वेश्चन मैंने एक ऑब्जेक्टिव में दिया था कि जब आप मेमोरी में जैसे STA स्टोर टू एक्यूमुलेटर, ठीक है, एंड सम मेमोरी लोकेशन दैट STA स्टोर जब हम करेंगे, तो स्टोर जब इंस्ट्रक्शन आता है तो मेमोरी में हम लोग राइट अप करते हैं. तो उस केस में आप देखेंगे कि इसका मतलब रीड तो ऑपरेशन ऑलवेज हो रहा है और राइट ऑपरेशन भी होगा जब मेमोरी में हम पुटअप करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि रीड इज ऑलवेज हैपेंड और राइट तब होगा जब हम मेमोरी में पुट करेंगे. जब मेमोरी में पुट करेंगे तो रीड राइट ऑपरेशन होगा, और अगर हम मेमोरी से डेटा लेंगे तो ओनली रीड ऑपरेशंस आर हैपेंड. ठीक है, तो दिस आर द टाइमिंग डायग्राम्स वी अंडरस्टैंड. अब आप अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार थोड़ा सोच सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका टाइमिंग डायग्राम रेडी हो जाएगा. ओके, इन दिस केस ऑल्सो द 70 स्टेट्स आर प्रेजेंट. तो so for this reason we conclude all the timing diagrams, and this is an important points we briefly understand about the whole timing diagrams, how to design your timing diagrams. And opcode fetch are contain 40 states always, and the 40 and the fourth one is your decoding time. At the time is the your microprocessors are decode, and the rest time there is only the 3 clock pulse are required. Only the 3 clock pulse are required